Hello everyone. Today's topic is Green Skills, Session 1, Environment Protection and Conservation. That means what are the ways to protect the environment and how can we conserve our natural resources. Okay, so this is all about what we are going to discuss in this unit. So first of all, let's learn about the environment. Environment होता क्या है? The word environment is derived from the French word environ. जो ये एनवायरमेंट वर्ड है ये फ्रेंच भाषा के एनवायन शब्द से लिया गया है विच मीन्स सराउंडिंग, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, दैट मीन्स आपके आसपास चारों ओर. अवर एनवायरमेंट कंप्राइजेस आवर सराउंडिंग्स, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर दैट कवर्स द अर्थ सरफेस, द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस एंड मच मोर. यानी कि जो हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, आपके चारों तरफ जो प्लांट्स एनिमल्स आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है, द वाटर दैट कवर्स द अर्थ, दीज ऑल कंप्राइजेस अवर एनवायरमेंट. The environment can be categorized into two types. Environment को देखिए two types में categorize किया गया है. First one is natural environment and second one is human made environment. Natural environment जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, natural environment comprises all the living and non-living things that are not man-made. ठीक है, जितने भी living non-living things हैं और जो कि man-made नहीं है, naturally हैं, that comes under the category of natural environment. For example, land, water, air, hills, etc. These all comes under the category of natural environment. Second one is human made environment. Human made environment means the environment which is created by the human being. For example, the buildings, highways, dams, etc. That means that environment is not natural, that is made by the human being. Now, what is ecosystem? आप सभी ने सुना होगा. An ecosystem is a community of living and non-living components. जितने भी living और non-living component है उन सब की एक community है. That means they all are interdependent on each other. हम सभी एक दूसरे पर dependent है, living और non-living thing. ठीक है. An ecosystem is formed when living things, plants, animals and organisms in an area interact with each other. जब non-living things और living things एक particular area पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, that becomes ecosystem. ठीक है. For example, plants, animals and organism, ये तो living thing है. ठीक है. अब देखिए plants को किसकी जरूरत है? वाटर की, sun की, soil की. That means these all are dependent on each other. Living, non-living आपस में एक दूसरे के ऊपर interdependent है, और जहां पर particular एक जगह पर ये मिल जाते हैं, it becomes ecosystem. Okay, as you can see in the diagram here, you can see the fish, rock, sea, air, bacteria, sunlight, etc. Okay, this is the example of an ecosystem. Effect of human activities on environment. Human activities का environment के ऊपर कैसे फर्क पड़ा? देखिए, आप सभी पहले जानते हैं कि human beings जो हैं पहले जंगल्स में रहा करते थे and they were getting all the necessary things from the jungle or the nature. ठीक है. तो jungles were protected by them, वहां से ही उन्हें सब चीजें मिलती थी and the nature was also balanced. But जैसे जैसे population बढ़ी, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजीज आई और उसका क्या इफेक्ट पड़ा वो अब इसमें हम पढ़ लेते हैं. विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो चेंज्ड. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो इंसान का और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस आ गए, क्योंकि पहले तो इंसान देखिए पूजा भी किया करते थे प्रकृति की. Human are the only living organism capable of modifying the environment according to the need. इंसान इकलौता एक ऐसा प्राणी है जो कि एनवायरनमेंट को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई चेंजेस कर लेता है उसमें. और ग्रेजुअली ह्यूमन एक्सप्लोटेड द नेचुरल रिसोर्सेज, और उसका परिणाम क्या हुआ है कि इंसान ने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से एक्सप्लोट कर दिया है एंड स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग, अभी भी कर रहे हैं. ठीक है. किस लिए? सिर्फ अपनी सोसाइटी के आराम के लिए, कंफर्ट के लिए. To fulfill the requirements or the needs of increasing population, जैसे जैसे population बढ़ रही है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए human being have undertaken certain activities like rapid industrialization. तो उन सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बढ़ती population की जरूरतों को, इंसान ने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज की जैसे कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ही तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण हुआ. ठीक है. अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, बिना किसी प्लानिंग के अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हुआ. ठीक है.
डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन के लिए क्या किया जाना लगा, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जाने लगा, एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन मींस ओवर यूज किया जाने लगा जरूरत से ज्यादा, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। हमारे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो गए, क्यों हुए, कौन कौन सी एक्टिविटीज थी वैसी। फर्स्ट वन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का इतना ज्यादा यूज किया जाने लगा, ठीक है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। सेकंड है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने पढ़ा कि कितनी तेजी से स्प्रेड हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होने लगा। कंपनियों से निकलने वाला गार्बेज जो है हमारे रिवर्स में, पॉन्ड्स में इजीली रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब पॉल्यूशन कई तरह का होता है, वाटर, लैंड, एयर, आप सभी ने पढ़ा है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन मीन्स द गैसेस दैट हीट द एनवायरमेंट, ऐसी गैसेस जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है, जैसे कि CO2 है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो है एमिशन होने लगी। न्यूक्लियर वेपन्स, इतने डेंजरस वेपन्स बनाए जाने लगे जिसकी वजह से इतना हीट अर्थ के अंदर जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आना, ये न्यूक्लियर वेपन्स की जो टेस्ट किए जाते हैं ना, परीक्षण किया जाता है, ये उसका रिजल्ट है। रेडियो एक्टिव वेस्ट इतने ज्यादा होने लगे, ठीक है। सो दीज ऑल आर द रीजंस ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतना जरूरी है क्यों। It is important to conserve natural resources because as we continue to overuse the natural resources, a serious natural imbalance will be caused in the environment. जिस तरह से हम overuse कर रहे हैं ना natural resources का, जरूरत से ज्यादा पानी का वेस्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट करना, पेट्रोल का वेस्ट करना, जितना ओवर यूज कर रहे हैं, तो आगे चल के हमारा एनवायरमेंट पूरी तरह से इम्बैलेंस होने वाला है, ऑलमोस्ट हो भी गया हो। एंड मैनी नेचुरल रिसोर्सेज मे सून गेट एग्जॉस्टेड, जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, देयर आर मैनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर है वो लिमिटेड है, आप ओवर यूज करके, उसका वेस्ट करके, एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर, फ्रेश वाटर जो है वो बचेगा ही नहीं, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द अपकमिंग जनरेशंस, हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की जरूरत है। अब बात करते हैं व्हाट आर द वेज ऑफ कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, बट 3 R's फॉर्मूला जो है ये काफी फेमस है। 3 R's फॉर्मूला मींस रिड्यूस, recycle and reuse. Reduce means try to reduce the overuse of natural resources. जितना ज्यादा हो सके हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें, उतना ही परचेज करें जितनी हमें जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, रिड्यूस करने की कोशिश करें। इसी को बोलते हैं रिड्यूस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अपनी जितनी जरूरत है उतना ही परचेज करें, वेस्ट ना करें, ठीक है, कम करना। Next one is recycle. Recycle means making the new products by the already used product. जो products use हो चुके हैं उनको recycling के थ्रू दोबारा यूज में लाना, इसी को बोलते हैं recycle, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इस टाइप से, ठीक है, उनको रिसाइकिल करके दोबारा यूज में लाना ताकि हमें न्यू प्रोडक्शन ना करना पड़े। थर्ड वन इज रीयूज। रीयूज मीन्स दोबारा से यूज करना, यूजिंग द यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन, बार बार किसी चीज को यूज करना। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, ठीक है, आप इनको फेंकने की बजाय आप इनको वाटर के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें प्लांटिंग कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा, आप रीयूज करके मल्टीपल क्रॉप्स भी इससे ले सकते हैं, ठीक है। तो रीयूज करने की, फॉर एग्जाम्पल आपका नोटबुक्स हैं आपकी, तो आप उसमें सिंगल साइड पेज पर लिखने की बजाय डबल साइड लिखना शुरू कर दें। आपके घर में पुराने कपड़े, टॉयज, बाइसिकल्स वगैरह होती हैं, आप उनको डिस्ट्रॉय करने की बजाय आप उसे ऑर्फनेज, किसी अनाथ आश्रम में दे दें, तो उसका रीयूज किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड 3 R's फॉर्मूला। बाय यूजिंग दिस many ways you can product or you can conserve the
नेचुरल रिसोर्सेज, काफी हद तक जो है आप नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो बाय यूजिंग द 3 R's फॉर्मूला। अब बात करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। एनवायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट मींस द प्रॉपर यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से मैनेज करना और उनका यूज करना, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। इसमें वाटर, एयर, लैंड एंड अर्थ डिपोजिट्स, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन, इस सब का प्रॉपर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट इश्यू टुडे, क्योंकि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है आजकल। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। बहुत जरूरी है हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। सो व्हाट आर द एसेंशियल स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हो आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट वन इज डेवलप एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स। अपनी हैबिट्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। कैसे? प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ वेस्टेज एंड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग पॉलिथीन बैग्स। आप पॉलिथीन बैग्स की जगह आप घर के बने हुए हैंडमेड थैले यूज कर सकते हो सब्जियां लाने के लिए, जिससे आपको प्लास्टिक घर में नहीं लानी पड़ेगी, और जितना आप नहीं लाओगे उतना ही उसका प्रोडक्शन भी कम होगा। किसी चीज की डिमांड जब कम होती है तो प्रोडक्शन भी ऑलरेडी कम हो जाता है। ठीक है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड हैबिट्स आपको अपनानी पड़ेंगी। नेक्स्ट वन इज यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी बाय मेकिंग श्योर दैट लाइट्स एंड एप्लायंसेस आर टर्न्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर तरीके से यूज करें। अगर आपको जब जरूरत नहीं है तो ध्यान रखें कि आपकी जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस हैं वो बंद हो, जरूरत हो आप तभी उसका ऑन करें। कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं, हम तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं तो हम तो यूज करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी जरूरत है ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज यूज वाटर जूडियसली फॉर डेली यूज। जो आप डेली वाटर यूज करते हो उसको जूडियसली एक तरीके से यूज करें। ठीक है, चाहे वो बाथिंग के लिए यूज करते हो, ब्रशिंग के लिए यूज करते हो, ड्रिंकिंग के लिए, या फिर वॉशिंग और कुकिंग के लिए, तरीके से यूज करो। कुकिंग में आप देखिए अक्सर सब्जियां धोते हैं, पानी फेंक देते हैं। आप उस पानी को गार्डन में भी तो यूज कर सकते हैं, जिससे प्लांट्स को भी बेनिफिट होगा और आपका पानी भी वेस्ट होने से बचेगा, प्रॉपर यूज हो जाएगा। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए आप जो वाटर यूज करते हैं उसे प्रॉपर तरीके से यूज करें। ब्रशिंग करते वक्त कुछ लोग टैप खुला छोड़कर ब्रश करते हैं, ये भी बैड हैबिट है। आप ब्रश करने के बाद भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि बहुत पानी वेस्ट होता है। ठीक है, प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट होम। आप कोशिश करें कि जो बारिश का पानी होता है आप उसे घर पर हार्वेस्ट कर सकें, यानी कि बारिश के पानी को स्टोर करना। दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इंक्रीजेज द वाटर लेवल ऑफ द ग्राउंड। ये हमारी जमीन के वाटर लेवल को भी बढ़ाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हार्वेस्ट द रेन वाटर। और क्या कर सकते हैं? ट्राई टू एजुकेट पीपल इन योर लोकेलिटी फॉर द प्रोटेक्शन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप अपनी सोसाइटी के लोगों को, लोकेलिटी के लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि वो किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करें। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड सीवेज मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर दे रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज। इंडस्ट्रीज से निकला हुआ जितना भी वेस्ट है उसको डायरेक्टली आप वाटर बॉडीज में ना बहाएं विदाउट ट्रीटिंग। ठीक है, यूज बायोगैस एंड बायोफ्यूल्स एट होम। घर पर कोशिश करें कि बायोगैस का यूज करें। ठीक है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट काफी हद तक प्रोटेक्ट हो सकता है। सेशन 2, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी होती क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी, ये जो आपका वोकेशनल स्किल्स से सब्जेक्ट इवन 12th में भी सीबीएसई ने इंक्लूड किया है। क्यों करना पड़ा? आपके एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, ताकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस मिले, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। सो व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी? ग्रीन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी दैट रिजल्ट्स इन इंप्रूव वेलबींग एंड सोसाइटी इक्विटी व्हाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग एनवायरमेंट रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कैर्सिटी। यानी कि ग्रीन इकोनॉमी से मतलब एक ऐसी इकोनॉमी से है जिसमें हम एनवायरमेंट के रिस्क को ज्यादा से ज्यादा मतलब कम कर दें। ठीक है, और समाज में एक समानता लाएं, ताकि इंसान की, हमारी जो लाइफ है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी रेज हो और साथ ही साथ हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो। इसी को बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी कैन बी सीन एज अ मीन टू अचीव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए इसमें भी दिया हुआ है कि ग्रीन इकोनॉमी का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि क्वालिटी को बेटर बनाना, लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाना इस प्लेनेट पर। ठीक है, कैसे बना सकते हैं? बाय बैलेंसिंग एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस करके, इकोनॉमिक एंड सोशल एलिमेंट्स, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। ठीक है, क्योंकि विदाउट सोशल इंक्लूजन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इट लीड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आ जाता है कई बार।
sustainable development which fulfills the needs of the present generation without exhausting the resources for the future generation। यानी कि आज के समय की जनरेशन की जरूरतों को भी पूरा कर लें हम, और हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए भी हम कुछ बचा कर रखें। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट दैट इज सस्टेन्ड। आप ऐसे भी बोल सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड कीपिंग द इम्पोर्टेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट फॉर द अपकमिंग जनरेशन। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ बचा कर सकें, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। अब डेवलपमेंट के लिए रास्ते में जितने भी ट्रीज आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, आप उन्हें बेहिजक कट कर देते हैं, जरूरी भी है, ठीक है, डेवलपमेंट भी जरूरी है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जितने ट्रीज हम कट करते हैं उसकी जगह रिप्लेसमेंट में हम और ट्रीज भी तो लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है, और हमारी जो नेचर भी है रिस्टोर हो जाएगी। इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि टिकाऊ। हिंदी में इसे बोलते हैं धारणीय विकास। सस्टेन, जो कि टिका रहे। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, आप डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, सारे ट्रीज आपने काट दिए, आपको पीने के लिए वाटर नहीं रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का। तो डेवलपमेंट करें लेकिन आने वाली जनरेशन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और अपनी जरूरतों को भी पूरा करें। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। अब बात करते हैं ग्रीन स्किल्स क्या होते हैं। ग्रीन स्किल्स प्रोग्राम, ठीक है, बहुत चलाए गवर्नमेंट ने इसे। इसका मतलब क्या है, इसके रीजन क्या थे, क्यों चलाया गया था। ग्रीन स्किल रेफर्स टू द नॉलेज, एबिलिटीज, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स नीडेड टू लिव इन। ग्रीन स्किल से मतलब है उस नॉलेज से, उस एबिलिटी से, उन वैल्यूज से, एक ऐसे एटीट्यूड से, ठीक है, जिससे एक सोसाइटी डेवलप हो सके और हमारे जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है एनवायरमेंट पर उसे हम रिस्टोर कर सकें। यानी कि हम लोगों को ऐसे नॉलेज देना, ऐसे स्किल्स प्रोवाइड कराना जिससे कि एनवायरमेंटल रिस्क कम हो सके, हमारे एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इसी सब को बोलते हैं ग्रीन स्किल्स, ठीक है। और इसका एक नाम है GSDP, मतलब ग्रीन स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एम्स ऑफ ग्रीन स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, भारत में ही चलाया गया था GSDP। इसका क्या मोटिव था, इसका मोटिव था टू ट्रेन ग्रीन स्किल्स वर्कर्स विद टेक्निकल नॉलेज। ऐसे वर्कर्स को तैयार करना जिन्हें टेक्निकल नॉलेज भी हो, ठीक है, और हमारे एनवायरमेंट को वो कंजर्व भी कर सके और प्रोटेक्ट भी कर सके। यानी कि ऐसे वर्कर्स तैयार करना जिन्हें टेक्निकल नॉलेज भी दी जाएगी और उन्हें ग्रीन स्किल्स के बारे में बताया भी जाएगा, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से लेके, एक तरह से एनवायरमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट इज टू जनरेट न्यू जॉब्स फॉर ग्रीन स्किल वर्कर। ऑब्वियसली अब जब न्यू ग्रीन स्किल्स जब वो सीखेंगे तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, ठीक है। हु विल हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन एंड मिनिमाइज वेस्ट एंड प्रोडक्शन। इससे क्या होगा कि वेस्ट भी कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा और एनर्जी जो है हमारी वो भी रिड्यूस और प्रॉपर कंजप्शन हो पाएगा जितनी हमें उसकी जरूरत है। टू प्रिजर्व और रिस्टोर एनवायरमेंटल क्वालिटीज, एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है उसे दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है और प्रिजर्व किया जा सकता है, सो दैट इट लास्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लास्ट वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब से आप क्या समझते हैं। ग्रीन जॉब इज डिफाइंड एज अ वर्क इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, research and development and service activities that contributes towards preserving or restoring the quality of environment। ग्रीन जॉब को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में आपको वर्क करना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, ये सभी एक्टिविटीज आपको करनी है, जिसका फायदा क्या होगा, आप अपने एनवायरमेंट की क्वालिटी को रिस्टोर भी कर पाएंगे, प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो ग्रीनरी आपको कहाँ से मिलेगी, हाउ यू विल सेटिस्फाई योर डेली नीड्स, आपको खाने को कहाँ से मिलेगा, जरूरतें कैसे पूरी होंगी। मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत जरूरी है डेली लाइफ में, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। रिसर्च भी बहुत जरूरी है, रिसर्च करने से क्या होगा, आपको नई नई टेक्निक्स का पता चलता है, जिसके थ्रू आपको न्यू न्यू वेज पता चलते हैं, ठीक है, अबाउट एवरी फील्ड, चाहे वो ग्रीन स्किल्स हो या कोई और अदर फील्ड हो, ठीक है। इस सब का बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जो एनवायरमेंट की क्वालिटी है वो भी रिस्टोर हो जाएगी और आपका एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यू कैन सी दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ दिस सेशन, एंड आई एम श्योर दीज ऑल क्वेश्चंस विल हेल्प यू अ लॉट while your exams. I have used my best or simplest language to explain each and every point.
और वैसे भी ये देखिए बहुत ही इजी, आपको जस्ट समझने वाला, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बस एक बार इसे पढ़िए और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप you will get my point seriously and just try to take the activities, do the activities or take the actions that will help to protect the environment। environment को आप प्रोटेक्ट कर सकें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप प्लांट्स लगा सकें, आगे चलकर वो ट्रीज बनेंगे, आने वाली जनरेशन के लिए भी काम आएंगे। ओके, सो ट्राई टू मेक योर अर्थ एज ब्यूटीफुल एज इट वॉज, जैसी ब्यूटीफुल थी उसे वैसा बनाने की कोशिश करें। I hope you will take care and consider all the points in your mind. Thank you very much for watching. Have a nice day ahead. Keep learning. Thanks.